आजा आजा जिंद शामी आने के तले चजरी और नीले आसमाने के तले जय हो जय हो। जी आया नू तुसी साडे इस प्रोग्राम दे विच अपना कीमती समय कढ के आए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। और हुण इसे दे नाल असीं अपनी तिरंगा यात्रा दा आरंभ करांगे। तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद तुसी साडे नाल खड़े होए साडे इस प्रोग्राम दा हिस्सा बने। मैं डॉक्टर राजेश डोगरा जी नू रिक्वेस्ट करांगी सर प्लीज स्टेज ते आओ और साडे चीफ गेस्ट जी दे कर कमला नाल इस तिरंगा यात्रा दा आरंभ करो। धन्यवाद। आजा आजा जिंद शामी आने के तले चजरी और नीले आसमाने के तले जय हो जय हो। सच्ची मैंने जान गवाई है नच नच कोई लो पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने मुझको से मुड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले सारी वाले नीले आसमान के तले जय हो जय जवान। देश की रक्षा कौन करेगा? मेरा हिंदुस्तान मेरी जान मेरा हिंदुस्तान। आज स्वामी हीरानंद महाराज जी की पावन नगरी पिंड नंगल विहाला दे विच गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य दे विच एक तिरंगा मार्च कढ़िया जा रहा है। अज दे साडे मुख मेहमान साडे समाज सेवक साडी प्रेरणा साडा हर वेले साथ देने वाले गरीबां दे मसीहा साडे सोशल वर्कर केडी खोसला जी साडे विच आ चुके हैं। आओ ताड़ियों दे नाल इन्हां दा एक बार स्वागत करिए अते भारत माता की। उन्हां दे नाल बैठे हुए समाज सेवक अनिल जी जगदीप सिंह जी सन ऑफ शहीद खेम सिंह जी सिंघोवाल तो अते स्टेज से बैठे और पतवंते सज्जनों का मैं डॉक्टर जेश डोगरा चेयरमैन बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। बिल्कुल ऊपर जाके तुम देखो कि वाकई ये सच्चियां गल्लां उन्होंने मेहनत की होगी क्योंकि इन्होंने अपना संघर्ष शुरू तो ही। मेरे देशवासियों ਅਸੀਂ बड़े खुशहाल हाँ ਅਸੀਂ उस देश के वासी हाँ जिस देश के विच हर धर्म का मान सत्कार किया जाता है। साडे भारत संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सानू सबना नू संविधान दे विच अजिहे हक दे दिते हैं जिहदे विच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा साडा कायम है। असीं बड़े खुश नसीब हाँ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੂਗਲ ਛਾਣ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਂ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਸਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਡੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਚਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਹਮ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਆਓ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਔਰ ਭੈਣ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੇਡੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਯੁਵਾ, ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਔਰ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਔਰ ਸਲੂਟ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਧਕਾਂ ਤਨ ਮਨ ਹੀ ਐਸੇ ਢਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਧਕਾਂ ਤਨ ਮਨ ਹੀ ਐਸੇ ਢਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਲਈ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਏ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੈਕਾਰਾ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ,
ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਅਹਿੰਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਹਿੰਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਹਿੰਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ। ਚਮਕੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਜਨਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਕੇ ਛੁੜਾਏ ਸੀ, ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਉਸ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਹਿੰਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ केडी खोसला जी ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद हमेशा मिलता है। और बाकी भी जेडे इत्थे बैठे हैं, इस बार मैं वो अपना समा नहीं दे पाया व्यस्तता करके, लेकिन मैनू इत्थे दा दृश्य देख के लग रहा है कहंदे कवि वो लिखता है जो उहदे दिल दे अंदर है। ते जेड़ा दृश्य देख रहे हैं ये इन्हां दे दिल दे अंदर दी जेड़ी भावना है, वो देश दे प्रति जज्बा है, देश भक्ति है, वो सामने नजर आ रही है। गेट चेंजर होंदे ही नजर आ रही है कि एक कमाई का साधन नहीं स्कूल बनाया इन्होंने देश भक्ति नूं लैके चले है। और इदां दे स्कूलां नूं सानूं सारिआं नूं सपोर्ट करनी चाहिए है। भारत माता की जय, जय सिया राम, बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर केडी खोसला जी का, जो कि समाज सेवी ने। थैंक यू सर, तुसी अपने इन्ने कीमती समय जो समय कट के साडे विच आए। अनिल कुमार जी मानसर वालियां दा, जो कि हुणे स्टेज ते तुहानू इन्ना जोश भर के गए ने, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सर। डॉक्टर प्रदीप सप्पियां जी का, सलग्राम जी का, ईश्वर सिंह जी का, डॉक्टर बलकार सिंह डोगरा जी का, थैंक यू सर। ठाकुर जगदीप सिंह सन ऑफ शहीद खेम सिंह जी, अनंत राम जी, डॉक्टर स्वतंत्र कौर साडी टीम ने मैम, थैंक यू सो मच। वो भी अपने बहुत बिजी शेड्यूल चो टाइम कट के आए ने। पब्लिक फोकस न्यूज़ वालियां दा धन्नवाद सर, तुसी सानू हर बार कवर करते हो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। विनोद महाजन जी दा, जो कि प्रेस दे भी ने और साडे परिवारक मैंबर दी तरह ने, थैंक यू सर। मुकेश डोगरा जी साडे मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि सिद्धा हुशियारपुर तो साडे कोल, थैंक यू सर। सुषमा डोगरा जी इस स्कूल दे प्रिंसीपल मैम ने, थैंक यू मैम। लंबरदार सोमराज जी, थैंक यू सर, ये सब तो पहला साडे कोल पहुंचे ने, थैंक यू सर। श्री चन्नन सिंह जी, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद। ते निघा धन्नवाद डॉक्टर राजेश डोगरा जी का, जिन्होंने सानू इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिता, इन्हें शुभ कर्म करने का मौका दिता, थैंक यू सर। और डोगरा पैरामेडिकल ते डोगरा पब्लिक स्कूल के स्टाफ मैंबर्स का भी बहुत बहुत धन्नवाद। तुहाडा सब तो ज्यादा धन्नवाद, तुसी टाइम कढिया, तुसी इत्थे आए और साडे प्रोग्राम नूं चार चंद लगाए, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। साडे विच पहुंचे हुए साडे सुरेश कुमार बिट्टू जी, इन्हां दा भी ते जी आयां नूं। साडे महाराणा प्रताप विकास मंच के प्रधान श्रीमती बीना ठाकुर जी, उन्होंने जी आया। साडे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे प्रेजिडेंट फौजा सिंह जी, उन्होंने भी जी आया। सिंहपुर तो गुरनाम सिंह, उन्होंने टीम का भी इत्थे जी आया। होर जिन्ने पतवंते सज्जन, मीको देवी जी बरोटे तो आए हैं नरेगा दियां बीबियां नूं लैके, उन्होंने भी जी आया। असीं ज़्यादा समा ना लैंदे होए आपां एक शुरुआत करनी है तिरंगा मार्च की। उस तो पहला मैं अज दे मुख मेहमान जी नूं निमंत्रण देवांगा कि स्टेज ते आके चार विचार साडे नाल सांझे करन। साडे केडी खोसला जी, भारत माता की, ताड़ी दे नाल स्वागत करो। भारत माता की, वंदे। आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कोटि नमन और सब तो ज्यादा खुशी ठाकुर साहब अनिल जी जिहड़ा अपने विचारों का प्रगटावा करके गए और डोगरा जी के प्रति जिहड़े शब्द इस विद्या मंदिर के प्रति देखो, कमाउण लई तां संस्थावां बहुत सारियां,
जिन्हों का उद्देश्य जिन्हों का मकसद पैसे इकट्ठे करने, लेकिन मानवता की सेवा और राष्ट्र निर्माण के इस महान कार्य के विच मेरे अजीज राजेश डोगरा जी जो योगदान पा रहे, उन्होंने वास्ते गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दी पंक्तियां, मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि तक झुका दे, मेरे समस्त अहंकार को मेरे आंखों के पानी में डुबा दे। इन्होंने वास्ते परम पिता परमात्मा के चरणों च बेनती कि हे ईश्वर इन्होंने शक्ति दो, सामर्थ दो। इन्हों की टीम नूं विनोद महाजन जी, इन्हों के साथी ठाकुर साहब, होर जितनी भी टीम और मेरिया होनहार बच्चियां जिहड़ी इन्हों के स्टाफ च इन्हों के नाल ने, प्रिंसीपल साहब, डीन मेरी बेटी, परमात्मा इन्हों हमेशा इन्हों का जो लक्ष्य जीवन का वो संपूर्ण करने की जिहड़ी है वो प्रेरणा दे और शक्ति दे। अज के इस पवित्र दिहाड़े के उत्ते जो एक विशेष कार्य, इस तो पहला कि आप गणतंत्र दिवस से कुछ कहिए, मैं इन्होंने होनहार नौजवानों के प्रति जिहड़े मेरे मन के उद्गार है, मेरे मन के जिहड़ी इन्हों के प्रति श्रद्धा है और जो कुछ मैं इन्होंने अपनी अखीं डिठा है, अखां नाल देखिया है कि जिहड़ा इन्होंने वधिया ढंग दे नाल एक राष्ट्र निर्माण के कार्य दे विच और सब तो वड्डी गल जिहड़ी सैकुलरिज्म और भाईचारा कायम रखने लई, बेशक कुछ साडे भाईचारे जिहड़े कुछ कम्युनिटीज है उन्होंने गिनती पिंड विच बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने भी जिहड़ा एक बराबरता का दर्जा है वो देने लई इन्हों का जिहड़ा काला है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का स्टैचू बनाना, महाराणा प्रताप जी का स्टैचू बनाना, हनुमान चौक जी और बहुत सारे इन्हों के जिहड़े कारज है वो शलाघायोग है। और अज के इस गणतंत्र दिवस के उत्ते जो असी कहने कि भारत का संविधान लागू है 1950 के 26 जनवरी 1950 जो सब तो पहली जो राजपथ से परेड हुई 1955 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अगवाई के और वो जरा साडा संविधान सी सानू खुद मुख्तियारी असी अपने लिए अपने कानून अपने नियम असी खुद बनाए, ब्रिटिश सरकार ने नहीं, किसी विदेशी सरकार ने नहीं, लेकिन उस प्राप्ति का जो वो प्राप्ति किमें हुई, उन्होंने प्राप्ति वास्ते जो लखा ही शहादत, लखा ही कुर्बानियां, कई गोदा सुनिया हुई, कई भैनों के वीर चले गए, कई मातावां के लाल चले गए, वो तां जाके ये शहादतां दे नाल ये जिहड़ी सानू आजादी प्राप्त हुई। और उस आजादी को प्राप्त करते हुए मैंने याद है वो घटना 26 जनवरी 1930 लाहौर रावी नदी के किनारे महात्मा गांधी जी ने अपने हजारों ही साथियों के नाल रावी के किनारे खड़े होकर संपूर्ण स्वतंत्रता का नारा लाया। यही कारण से कि संविधान लागू करने लिए 26 जनवरी 1950 का दिन ही जरा वो निश्चित किया गया ताकि उस महान कार्य की शपथ लेगी सी रावी के किनारे बैठ के उस शपथ को पूरा किया जाए और जी शहादत उस स्वतंत्रता बरकरार रखने वास्ते उस आजादी को बरकरार रखने वास्ते अज भी जो नौजवानों ने मेरे वीर ने मेरे बच्चों ने इनू इस स्वतंत्रता कायम रखने वास्ते जो शहादत दी मेरे सामने मेरे भाई साहब जी बैठे इन्हों के हुनर बेटे ने जो शहादत दी बहुत सारे इस तरह के नौजवान जिन्होंने अपनी शहादत देखे ये जरा सानू आजादी का निग प्राप्त करने का मौका दिता और उस आजादी के नाल ही असी अपना संविधान लागू करने के सफल हुए। पर अज के दिन एक सवाल यह भी होता है कि जिथे सानू ये अधिकार प्राप्त होया कि असी अपने फर्जों तो भी अविसरे ना हो जो सानू ये अधिकार कि असी आजादी का निक माणीए अपने बनाए कानूनों का पालन करिए जो साडे फर्ज है वो भी जरूरी है कि मैं भारत का नागरिक होंदा होया भारत के प्रति मेरा की फर्ज है। इस तो पहला मैं ये कहा कि मैनू भारत ने की दिता, मैनू मेरे राष्ट्र ने की दिता, मैं अपने अंतर अपने मन के विचार करा कि मैं भारत को की दिता। जे असी किसी बाप को
अपने कपड़े वस्त्र या पैसे मंगने का हक रखते भी मेरा प्यो है, मैं को लेने हैं, तो साडी ये ड्यूटी भी है, मैं अपने बाप की सेवा भी करूं। जे मैं अपने बाप का आज्ञाकारी पुत्र नहीं तो मैं अपने बाप को कुछ लैण का भी हकदार। इस करके साडा साडे राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेवारी है, साडे देश के प्रति जो जिम्मेवारी है, जिन्हां शहीदां ने, जिन्हां वीरां ने ये शहादतां दे के इन्हूं प्राप्त किया, इन्हूं बरकरार रखी। मैं कई बारी क्या करता कि शिखर तक पहुंचना तो मुश्किल है ही, कोई शक नहीं कि शिखर तक छेती नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन शिखर के बरकरार रहना उस तो भी औखा है। शिखर के बरकरार रखने वास्ते इस स्वतंत्रता नूं, इस अपनी आजादी नूं बरकरार रखने वास्ते इहदे प्रति जो साडीआं ड्यूटीज आ वो निभाउणियां जरूरी है। और उसे ड्यूटी नूं डॉक्टर राजेश टोगरा जी तो निवारे जिहड़े इन्हां बच्चिआं नूं, इन्हां सोहणियां मूर्तां नूं घड़ के वधिया नागरिक बना रहे। तो कहा जाता ना कि तकदीर पत्थर की भी समझ सकती है, शर्त जे है ढंग से तराशा जाए। इन्हां मूर्तियां नूं, इन्हां बच्चिआं नूं ये तराश के वधिया नागरिक बनाउंदे, और ये वधिया नागरिक जिहड़े आ इन्हां ने ही कल नूं राष्ट्र दे होनहार बनना। और इन्हां दी लगन, इन्हां दी मेहनत जो है वो अपने आप से मिसाल है। और इन्हूं याद होंदियां हरिवंश साहिब दियों वो हरिवंश बच्चन जी दी पंक्तियां, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, ऊंची दीवारों पर गिरती चढ़ती 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं करता है, कोशिश उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ਜਿਹੜੇ व्यक्ति कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्होंने मेहनत कभी बेकार नहीं होती। जिंदगी ये कोई जरूरी नहीं कि जो कुछ मैं सोचा, जो कुछ मेरे मन च वही हो। बहुत बार ਉਹਦੀ विपरीत परिस्थितियां, विपरीत हालत, ਉਹਦੇ उलट हालात जिंदगी जीनी पैंदी। मैं अपनी जिंदगी दे विच बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने संघर्ष करते देखा और उस तो मैं प्रेरणा ली। मैं स्वयं अपनी जिंदगी दे विच 5वीं क्लास तक स्कूले गया। 1965 में 5वीं पास कर ली, 6वीं की फीस नहीं दी। मेरे माता पिता को 6वीं की फीस नहीं दी गई। मैं बहुत छोटे जे घर दुकानों से बर्तन साफ करने दे, साइकिल रिपेयर की दुकानों से काम किया, लेकिन मन च विश्वास सी कि मैं पढ़ना है। 11 साल बाद 1976 में प्राइवेट मैट्रिक पास किया। उस तो बाद प्रभाकर, फिर ग्रेजुएशन, फिर BA और भारतीय सेना की सेवा की। लेकिन वो सब के पीछे एक प्रेरणा सी, एक उद्देश्य सी, एक मकसद सी। उस मकसद में छूना जी वो मेरी प्रेरणा सी। मैं जो मेरी साइकिलों की दुकान होंगी सी तो उदों आम लोगों को तो 40-45 साल पहले साढ़े को साधन महिंद्रा साइकिल ही होंगे सी। तो उस साइकिलों की भी रिपेयर के नाल मेरे नाल एक मुची सी बैठे होंगे। उन्होंने वो जो टायर फट जाने, उन्हें टायरों की सिलाई करनी, रिपेयर करनी, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਮਨ ਲਾਲ लोहे नूं कट देगा धागा? कहंदा हाँ भाजी मैं कोशिश करने लोहे नूं ये धागा कट ले, क्योंकि ओदा एक दृढ़ निश्चय सी, ओदा तहैया सी। उस तहैये के द्वारा मैं देखे कि उस बंदे ने धागे दे नाल लोहे नूं कट दिता। और जे धागे दे नाल लोहा कटिया जा सकता तो मैं की नहीं कर सकता। एक सबक मिलता जिंदगी का, एक लक्ष्य मिलता कि मैं की नहीं कर सकता। सो अज दे स्वतंत्रता दे गणतंत्र दिवस से असी भी यही निश्चय करना कि जेड़े काम असंभव है, नामुमकिन है, वो भी असी करके दिखाने। क्योंकि जो दृढ़ निश्चय है, इरादा है, वही सब तो बड़ी गल है।
तो परम पिता परमात्मा के चरणों च यही बेनती देह शिवावर मुहे है शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं और सोही जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की। मैं तिरंगा मार्च शुरू करने तो पहला ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਠਾਕੁਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ शहीद बख्तावर सिंह जी जिन्हें सरहदां ते देश की रक्षा करते करते शहीद हुए उन्होंने पिता जी सरदार प्रीतम सिंह जी संधू जी को बेनती करांगा इस स्टेज ते आउण। उन्होंने नाल गुरनाम सिंह जी को बेनती करांगा वो भी स्टेज ते आउण। ਅਸੀਂ कोई भी काम करिए सब तो पहला सानू उन्हां शहीदां नू याद करना चाहिए जिन्हां सदके ਅਸੀਂ ਅੱਜ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सानू गर्व होता है ਅਸੀਂ उस देश के वासी हाँ जिस देश का सैनिक हमेशा जान देने के लिए कुर्बान रहता है। सानू होर फकर होता है कि ਅਸੀਂ उस देश के वासी हाँ जिस दा बच्चा बच्चा देश के मरण लिए तैयार है। ਅਸੀਂ जी आए आखते हैं। साडे गेस्ट आए हैं, प्लीज बैठो। मैं सब तो पहला साडे अज दे मुख मेहमान केडी खोसला जी जगदीप जी नू ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ जिन्होंने ने देश के लिए अपनी जान दी उन्होंने पिता जी नू सम्मानित कर रहे हैं साडे केडी खोसला जी। भारत माता की। भारत माता की। वंदे। असी तिरंगा मार्च लैके चलना है बड़े ही अनुशासन दे नाल सिस्टम दे नाल। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान जय किसान दे नारे लगाते हुए साडे गुरनाम सिंह जी नूं भी सम्मानित करांगा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। भारत माता की। सर प्लीज ਅਸੀਂ तिरंगा मार्च शुरू करना है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ के बोले रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ के बोले रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है सजीला। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।
भारत माता की, भारत माता की। ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਰੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਵੇਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। इस विद्या मंदिर में सम्मानित होते हुए मैं अपने उन्होंने महानुभाव जिन्होंने सम्मान रक्षण किया उन्होंने प्रति राहत इंदौरी दियाँ वो पंक्तियाँ मेरे मरने के बाद मेरी अलग पहचान लिख लेना, मेरे मरने के बाद मेरी अलग पहचान लिख लेना, मेरे लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान। भारत माता की। ਪਿੰਡ ਨੰਗਲਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਡੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ केडी खोसला जी। अरुण ज मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान किसी को मिलता एक सहारा, लघु सुधनु से पंख पसारे मलय शीतल समीर सहारे, उड़ते खग जिसोर मुंह किए समझ नीर निज प्यारा। अरुण ज मधुमेह देश हमारा उस तिरंगे नूं इस देश कोटि कोट नमन करते हुए आज संविधान निर्माता
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्हां दी बदौलत असी अज संविधान के अधिकारां दा हक मान रहे हैं। उन्होंने कोटि-कोटि नमन करते हुए, उन्होंने चरणों शत-शत नमन करते हुए परम पिता परमात्मा के चरणों अपने राष्ट्र वास्ते, अपने देश वास्ते, अपनी मानवता वास्ते, संपूर्ण मनुखता वास्ते अज के दिन नमन करते हैं। जय हिंद।
गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या आज राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति नाल कोट नगर नंगल विहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ डॉक्टर अवनीश डोगरा जी, विनोद महाजन जी, सरकारी प्रिंसिपल और सबको ऊपर मेरे अजीज राजेश डोगरा जी की अर्धांगिनी इन्होंने श्री के आजाद उस बेटे का भी मैं कोटि कोट को नमन करना और इन्होंने देश प्रेम का और राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो हाथ में जुनून तक जरूर की हद तक जो इन्होंने देता है मैं उन्हें सल्यूट करना। मैंने याद रखिया आज पंक्तियां रामा प्रसाद की स्मृतियां सर्वरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे क्या हमारे दिल में है, हम अभी शिकायत नहीं क्या हमारे दिल में है। देख के सैल्यूट करना और परम पिता परमात्मा के चरण यही प्रार्थना करना इन्होंने जता इन्होंने देश प्रेम इन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पित करना हमेशा पूरे नगर वासियों इन्होंने मार्गदर्शन करते रहे और आज जिथे असी बार बार वंदे मातरम का जयघोष करते उसे उस महान शख्सियत उस महान देश भगत और उस महान भिखारी बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने आजादी से पहले एक नारा लिखा सी आनंद बांटो। आनंद बांटते विच उन्होंने वंदे मातरम का नारा दिता सी और उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के उत्ते पाबंदी ला दी सी, इस शब्द पे पाबंदी ला दी सी। उन्होंने जो किताब सी आनंद बांटो वो भी जब्त कर दी गई सी। आज असि स्वतंत्रता का लिख मानते हुए अपने ख्यालात का अपने विचारों का जिस प्रकार बुरा और प्रयोग कर सकते हैं शायद आजादी को पहले ऐसा दृष्टि आज आजादी दिनों दीवाने आजादी दिनों पुराने कोटि कोट नमन करते हुए परम पिता परमात्मा के चरणों ये प्रार्थना करते हुए कि वर्कशॉप की टीम ऐसे ही तरह सदबुद्धि करके बदलना चाहता पैदा करे। जय हिंद। माता की भारत माता जी असी बड़े खुश नसीब हाँ साडा आजाद भारत से जन्म होया। जेकर असी पिछला इतिहास देखिए साडे बजुर्गों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां कीतियां सानू आजादी लैण दे लई अते सानू अपने कानून का पालन करना चाहिए, अपनी संविधान की रक्षा करनी चाहिए। अज पिंड नंगलवाना दे विच बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बुत लगा है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का बुत लगा है, भारत के शूरवीर पुत्र महाराणा प्रताप जी का बुत लगा हुआ है, जिहड़ा सानू प्रेरणा दिंदा है असी अपनी हिंद की रक्षा करनी है। हिंद की रक्षा के लिए हर वेले असी तैयार रहना है। कोई भी विरोधी शक्ति जेकर साडे देश वाल वेखदी है सानू उसको मार मिटाने का पूरा हक है, क्योंकि ये देश भारत देश हर जात का हर मजहब का है। ना हिंदू बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है, ना ही मुसलमान। बुरे जो काम करता है बुरा होता है वह इंसान। सानू फकर होता है सारे देश के विच अज भी केडी खोसला जी वर्गे इंसान हैं जिहड़े जात पात तो ऊपर उठ के भाईचारे नूं मजबूत करने के लिए हर वेले तैयार रहते हैं।
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ KD ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। भारत माता की महान स्वाभिमानी योद्धा अमर सेनानी महाराणा प्रताप जी के चरणों च खड़े हो गए आज आजादी का निक मानते हुए शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने बहुत घट गिनती छंदे हुए भी उन्होंने राजपूत सेनानियों के नाल उन्होंने योद्धा के नाल मुगल सेना का सामना किया, मुगलों की ईम नहीं मनी, उन्होंने हार नहीं मनी और सारे सुख सारी संपदा सब कुछ लुटा के भी अपने राष्ट्र प्रेम नूं अपने देश प्रेम नूं बरकरार रखिया। असीं छोटे होंदे संघ की शाखा गाया करते सी, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई बड़ी पार्टी है, खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है, इतिहासों के पृष्ठ बांटती आज भी हल्दी घाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। हल्दी घाटी ने उस महावीर सेनानी जिन्हें बहुत घट राजपूत योद्धा नाल लेके विशाल मुगल सेना का सामना किया और एक इतिहास बन गया होया। हल्दी घाटी का युद्ध जो सी वो विश्व के विच एक इतिहास के रूप, एक चानन मनारे के रूप, एक लाइट पोल की तरह हमेशा सानू प्रेरणा दिंदा रहेगा। आओ अज पवित्र दिहाड़े के उत्ते पवित्र गणतंत्र दिवस के उत्ते यही शपथ लईए कि इन्हां योद्धियां का इन्हां महान स्वतंत्रता सेनानियों को जो बलिदान है वो जाया ना जाए। इन्होंने शत नमन करते हुए इन्होंने जीवन को हमेशा प्रेरणा लेते हुए जय करे वीर बजरंगे। ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਂਕਟ ਲੈਣ। ਆਜੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਡਰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਫੜ ਦੋ पहले जिन्नी लेडीज है उन्होंने दियो, उस तो बाद बाकी
ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਜਾ रहे हैं कि मेरे देश की मोहब्बत को फनाह कौन करेगा, अगर सभी बंदे नेक हों तो गुनाह कौन करेगा। सलामत रखना मेरे सभी दोस्तों को, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। रखना महफूज मेरे दुश्मनों को भी, वरना तेरे पास आने की मेरी दुआ कौन करेगा, वरना तेरे पास आने की मेरी दुआ कौन करेगा। तो पेड़ पत्ते शाखाएं भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और सिख या मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये सोचकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। डोगरा साहब की गल ढुकती है कि अमन पसंद हूं, ये ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम किया है अमन शांति लिए किया है। अमन पसंद हूं बेशक, फिर भी मेरे शहर में दंगा रहने दो, मत बांटो मुझे हरे और लाल के चक्कर में, मेरी छत पर बस तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर बस तिरंगा रहने दो। सारे स्टाफ नूं, डोगरा साहब नूं कोटि कोटि नमन, सल्यूट, और साडे केडी खोसला जी नूं कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विश्व के सब तो बड़े गणतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस के उत्ते उसकी पूर्व संध्या ते डोगरा पैरामैडिकल इंस्टीट्यूट वालों जो तिरंगा मार्च कढ़िया गया बहुत ही शलाघापूर्ण है, और लगता सी कि जिमें पूरा इलाका ही, पूरी कायनात ही राष्ट्र भगती दे, राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगी होवे। अजिहा तिरंगा मार्च मैं अपनी जिंदगी च कभी नहीं देखा, और इन्हां दी जो मेहनत है, इन्हां दा देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देश भगती, जनून की हद तक देख के तो मन अचंभित हो जाता, और कभी कभी तो सोचने लिए मजबूर हो जाता कि अजिहे देशभक्त लोग भी इस देश च हन जिन्होंने अपनी सारी जीवन ला के, अपनी जिंदगी ला के इस राष्ट्र को सवारन लई ये महान कार्य किया। मैं समय समय पर देखता रहना डोगरा पैरामैडिकल इंस्टीट्यूट वालों, चाहे कोई धार्मिक समागम है, चाहे कोई देशभक्ति का पर्व है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, गांधी जयंती है, या क्रिसमस है, या लोहड़ी है, बैसाखी है, इन्होंने सारे पर्वों ही डोगरा पैरामैडिकल इंस्टीट्यूट के विच जिस ढंग के नाल मनाया जाता वो एक प्रेरणा स्रोत है। इन्ना ही नहीं, पैर पैर के उत्ते हर गली च, हर चौक के विच डोगरा पैरामैडिकल इंस्टीट्यूट के सहयोग के नाल जो महापुरुषों उन्हों की याद के विच बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर चौक, महाराणा प्रताप चौक, शहीद भगत सिंह चौक, हनुमान चौक, गजानन चौक, अजिही स्मृतियाँ जो इन्होंने स्मृति चिन्ह बना देते हुए वो अपने आप से एक मिसाल है। दुनिया तो आना तो जाना निश्चित है। ये सही है कि किसी भी शय को जहाँ करार नहीं, किरण बिखेर कर सूरज भी चला जाता है। जाना निश्चित है, लेकिन जान तो पहले वो व्यक्ति कर्म की कर गया, वो एक याद रखने वाली चीज़ है। दुनिया के महान लेखक साहित्यकार विलियम शेक्सपियर दी पंक्तियां हैं कि उन्होंने जी कायनात की तुलना है वो रंगमंच नाल कीती है। वो कहते कि दिस वर्ल्ड इज ए बिग ड्रामेटिक स्टेज एंड एवरी पर्सन इज एन एक्टर हु प्ले हिज रोल एंड सून लीव द स्टेज ऑफ दिस अर्थ। ये जी कायनात आ, ये जिन्होंने लोगों ने आके वधिया काम कर जाने, रंगमंच से आके जिन्होंने वधिया रोल अदा कर जाना, वो हमेशा याद किए जाने हैं। नहीं तो इस कायनात में कोई फर्क नहीं पैंदा। लखां लोग जमते हैं, लखां मर जाते हैं, लेकिन अपने आप को अमर वही लोग कर जाते हैं जिन्होंने लोग याद करना हमेशा। धन्यवाद। वंदे मातरम। अज डोगरा पब्लिक स्कूल और डोगरा पैरामैडिकल संस्था वालों तिरंगा यात्रा का जोड़ा आयोजन सी वो एक शलाघायोग कदम है, और सानू इन्हां तो प्रेरणा लेनी चाहिए है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग है, चाहे वो समाजिक या धार्मिक क्षेत्र के लोग है। इन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिता इलाके नूं समाजिक समरसता का, जिहदे विच सब तो पहला असीं बाबा साहब अंबेडकर चौक अच्छा नमन किया। उस तो बाद दे विच असीं महाराणा प्रताप चौक, हनुमान चौक और शहीद भगत सिंह चौक के दर्शन किए है। ये किते ना किते इन्होंने इलाके के अंदर एक सेध दी है, पूरे देश लिए ये सीखण की लोड़ है और उन्होंने सेध लैण की लोड़ है कि जिथे संस्था
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੋਗਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਵਿਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ KD ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਵਿਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੋਗਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਢ ਡੋਗਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡੋਗਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੋਗਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਔਰ ਭਾਗੀ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। Being the principal of Dogra Paramedical, I always thank to Dogra Paramedical to give all the opportunities ahead. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੋਗਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਰਾਮ BSP ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਵਿਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ।